Good morning. Uh, Today we have to deal with now about the Max Weber views on religion and Calvinism and Catholicism. Now, students, we have to see any ideology and pattern of the production system. Here we are going to see that how it is influenced by and religious values and religious ideology. Capism rose and in the European society, and this capitalism was no doubt influenced by the thought of the Calvinists. Calvinists, Calvin. Now I am talking about the Calvin. We know very well in the uh, in Europe, a Protestant religion, a Protestants movement, a Reformation started. Reformation, and this Reformation was a movement against the uh, Catholics evils and Catholics misnomer and illusion and Catholics existing ideas which were existing and Catholics rituals which were challenged unscientific notion of the Catholicism was challenged by the Martin Luther and Calvinism, Knox, and other Protestants say branches raise their voices and challenge the Catholics, Catholics notion and Catholics conservatism and gave a new speculation about the religion, about the Christianity. So amongst them, there was a Calvinist views, and these views had its angle, its look about the God, about the about the theories of hell and heaven, and relations of the economic activities with the God, relation with human economic activities, human aspiration, human motivations for earning the more. This now came from the religious ideology, religious thoughts, and religious views. And Europe helped in the emergence of the capitalist society in the Europe. Then now let's see first of all Mr. Max Weber, a pioneer work he demonstrated how sociology looks at religion. मैक्स वेबर का कहना है कि जो सोशोलॉजी है वो रिलीजन पर कैसे रिलीजन्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है एंड लुक्स इट्स रिलेशन टू द अदर aspects of social or economic behavior or religion, society or society's economic behavior and religious beliefs. तो इसके रिलेशंस को ये क्लेरिफाई करते हैं, इसके रिलेशंस को इंडिकेट करते हैं. The here Weber argues that Calvinism
I have already mentioned before you about the Calvinism. Calvinism, about the behavior of Calvinism, we see that Weber argues Calvinism, a branch of Protestant Christianity. Now we know very well that Protestant movement started and began by the Martin Luthers, and many of the branches, thoughts of thoughts, now sprang from the Protestant. तो उसमें से अमॉन्ग्स्ट देम द कैल्विनिस्ट था, कैल्विन कैल्विन था। उसने अपनी रिलीजन के प्रति टुवर्ड्स द रिलीजन उसके व्यू से अलग थे, एंड नाउ ही वाज नो डाउट बिलोंग टू द प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी एंड exerted important influence. उसने कहा कि आर्गू के कैल्विनिज्म जो है exerted an important influence on emergence and growth of Catholicism. वो कहता है कि जो कैल्विनिज्म है इसने exert किया, influence किया over the an important influence emergence and growth of Catholicism. कैल्विनिज्म के प्रभाव से कैथलिज्म का ग्रोथ हुआ, उसका इमर्जेंस हुआ। उनका मानना है, मैक्स वेबर का मानना है, ही बिलीव दैट एज ए मोड ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और ये कैल्विनिज्म इमर्ज्ड हुआ एज ए मोड ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इट वाज द influence of a Calvinist upon the society, or because of this influence the capitalist society emerged as a इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, जिसका आज भी पूरे दुनिया में डोमिनेंस है। अब इसका ओरिजिन माना जाता है कैपिटलिज्म का रिलीजन से, इसके ओरिजिन ही रिलीजन से और उस रिलीजियस थॉट से। तो हम रिलेशन यहाँ बता रहे हैं कि सोसाइटी, रिलीजन एंड इट्स नोशन एंड थॉट इफेक्ट ऑन सोसाइटी, and by that effect society is related with economic activities, and these economic activities may way of earning and way of the gaining and way of the exchange and transactions established and organized in a form of capitalism. ये एक कैपिटलिज्म के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड। वी हैव टू द सी, यही इसी चीज को खोजनी है। पूरे सोशोलॉजी के स्टडी में आपको यही रिलेशन ढूंढना है, या चाहे वो पॉलिटिक्स के साथ हो, चाहे हिस्ट्री के साथ हो, चाहे इकोनॉमिक्स के साथ हो, चाहे इसका सोशोलॉजी का रिलीजन के साथ आपका रिलेशन, इसी को आपको डिस्कवर करना है, इस रिलेशन को बाइफरकेट करना है और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे समाज में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म एक मोड ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बना। ये कहाँ से आया? कैल्विनिज्म के प्रभाव से, उसके इन्फ्लुएंस से आया। और मोर ओवर ये क्या बिलीव करते हैं? कैल्विनिस्ट बिलीव्ड दैट वर्ल्ड वाज क्रिएटेड फॉर ग्लोरी ऑफ गॉड। कहते हैं कि ईश्वर के फॉर ग्लोरी ऑफ गॉड इस दुनिया का को क्रिएट किया गया है। ग्लोरी ऑफ गॉड मीनिंग दैट एनी वर्क इन दिस वर्ल्ड, आगे कहते हैं कि वर्ल्ड का जो क्रिएशन है ये ग्लोरी ऑफ गॉड्स के लिए है, गॉड्स ग्लोरी है ये क्रिएशंस की। ग्लोरी ऑफ गॉड्स जो हम बनाती हैं, दुनिया को हमने बनाया, महल, ऑल थिंग्स हमने पोजिशंस जो बनाया, ये ईश्वर के ग्लोरी के लिए। ग्लोरी, ग्लोरी ऑफ गॉड मीनिंग दैट एनी वर्क इन दिस वर्ल्ड हैड टू बी डन। कोई भी दुनिया में, इस दुनिया में जो काम करते हैं, हैड टू बी डन फॉर हिज ग्लोरी, उसकी ग्लोरी के लिए करते हैं। मीन्स एवरी एक्ट of
the human beings is governed and dictated by the गॉड्स फॉर द गॉड्स ग्लोरी। हम जो भी काम करते हैं वो ईश्वर के ग्लोरी के लिए, उसके लिए हम काम और उसकी इच्छा से करते हैं। वी आर बिकॉज इट इज द गॉड्स ग्लोरी, गॉड्स ब्लेसिंग्स, कि हम ईश्वर के लिए काम करते हैं। वी आर द नाउ मोर ओवर हियर मेकिंग इवन मंडेन वर्क्स एक्ट्स ऑफ द वर्शिप। और हम एक्ट भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं, तो ईश्वर के लिए एक्ट ऑफ वर्शिप, उसमें भी हमें क्या है, ग्लोरी ऑफ गॉड्स है, उसको हम ग्लोरीफाइड करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर को ग्लोरीफाइड करते हैं। तो इसमें हम जो अर्न करता है ह्यूमन बीइंग, वो ईश्वर के ग्लोरी के लिए उनका मानना है। बिकॉज एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या है, कैल्विनिस्ट आल्सो बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री डेस्टिनेशन। उनका ये मानना है प्री डेस्टिनेशन यानी कि एवरीथिंग इज ए डिटरमिन्ड, डेस्टिनेशन है, ये होना है, प्री है, ऑलरेडी डिटरमिन्ड, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, ऑलरेडी। तो प्री क्या है, डेस्टिनेशन है, भाग्य में आपका पहले से ये चीज लिखा हुआ है, इसको हम लोग प्री डेस्टिनेशन कहते हैं, कि ये ऑलरेडी आपकी जो भाग्य है, आपका जो होनी है, वो तय है। प्री डेस्टिनेशन की बात करते हैं। मोर ओवर एंड विच मीन दैट वेदर वन विल गो टू हेवन, if one will go heaven or hell was preordained। आपको हेल जाना है या हेवन जाना है, ये प्री ऑर्डेंड है, निर्धारित है, सुनिश्चित किया गया है ऑलरेडी। वेयर यू आर गोइंग टू जहन, ये जन्नत और जहन्नुम, हेल और हेवन, मानते हैं कि प्री ऑर्डेंड है, प्री डेस्टाइन्ड है। व्हाई? देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग वेदर वन हैज बीन असाइन्ड हेवन और हेल। हालांकि इसमें कोई जानने का ये नहीं है कि कौन हेवन जा रहा है, कौन हेल जाएगा। वी नो, नो, नॉट एट ऑल। हालांकि सिंस इसमें कोई हमें पता नहीं है कि हम हेवन, पीपल sought to look for sign of God's will in this world। और इसीलिए हर व्यक्ति ईश्वर की जो साइन है, उसकी जो प्रतिछाया है, या उसका जो कुछ सिग्निफाइंग जो चीजें हैं, उसको ढूंढता है इसी वर्ल्ड में। उसी सुख को, अगर हेवन है तो उसको ढूंढता है। साइन ऑफ, पीपल sought to look for signs of God's will in this world in their own occupation। और उसको कहाँ ढूंढता है, वो अपने काम में ढूंढता है। There is no hell and heaven, nobody knows। तो उसको ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, अपने वर्क में ही ईश्वर को देखता है। Whatever you are doing, ये वही वो वर्क है, वर्क फॉर गॉड। वो अपने काम में, अपने ऑक्यूपेशन में ही उसे ईश्वर की तस्वीर नजर, ईश्वर के उसके ग्लिम्स वर्क इज वर्शिप। ईश्वर कहाँ है, हमारे ऑक्यूपेशन में, हमारे काम में ईश्वर। हम अपना वर्क करते हैं, ईश्वर ये काम करते हैं, भगवान। क्योंकि who has seen heaven and hell। तो हम अगर ईश्वर, अगर खुशी ढूंढते हैं, ईश्वर के विल्स ढूंढते हैं, तो अपने काम, अपने ऑक्यूपेशन। एंड हियर thus if a person in whatever profession, किसी व्यक्ति का was consistent
and successfully in his and her work. तो क्या होता है कि अगर now it was the 10 से एक पर्सन कोई व्यक्ति whatever कोई प्रोफेशन है was consistent successful in his or her work, it was interpreted as a sign of God's happiness. अगर हम अपने काम में consistent हैं, सक्सेसफुल हैं, है ना, कोई भी आप वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं उस काम को, उसमें आप सक्सेस होते हैं उस वर्क को करने में, वर्क में, तो इट इज इंटरप्रिटेड एज साइन ऑफ गॉड्स हैप्पीनेस. ये क्या है, हमारा सक्सेस अगर काम में है तो वही गॉड्स की हैप्पीनेस है, इंटरप्रिटेड एज ए साइन ऑफ ईश्वर की जो हैप्पीनेस है, दैट रिफ्लेक्ट्स इन दैट. उसी में आपका ईश्वर है, रिफ्लेक्ट होता है. अगर हम काम में अपने ईमानदारी रखते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, सक्सेसफुली करते हैं, तो ईश्वर वही क्या है कि भगवान की वही ईश्वर है हमारा काम, और वहीं से भगवान ईश्वर हमें ईश्वर की हैप्पीनेस हमें देता है. हम खुश होते हैं अपने काम के पूरा होने पर, हम सेटिस्फाइड होते हैं, तो इस मीन्स ये गॉड्स और गॉड्स हैप्पीनेस. हम हैप्पी होते हैं अपने काम से, गॉड्स हैप्पी. दिस इज द एंड मोर he say here God's will in this world or in their own occupation. And here we can see the money earned was not to be, जो हम पैसा कमाते हैं, not to be used for worldly consumption. Money earned was not to be the used for worldly consumption, rather than ethics of the Calvinism was to live frugally. कैल्विनिज्म के एथिक्स के अलावा जो ये मानता था कि ये फ्रूगलिटी, ये बचत करने का जो है, दैट वाज द फ्रूगलिटी मानते हैं, उसमें जस्ट नॉट टू बी द एक्सपेंस. पहले माना जाता था कि ये जो मनी है अर्न वाज नॉट टू बी द यूज्ड फॉर वर्ल्डली कंजप्शंस एंड रादर टू एथिक्स ऑफ द कैल्विनिज्म वाज टू लिव फ्रूगली. दिस मीन दैट इन्वेस्टमेंट्स बिकेम समथिंग लाइक द होली क्रीड. पहले तो क्या था, फ्रूगलिटी था, लोग बचा के पैसा ऐसे रखते थे जैसे, तो नहीं, इसमें क्या हुआ, कैल्विनिज्म ने कहा, कैल्विनिज्म के अनुसार इन्वेस्टमेंट्स यानी कि पैसे को बाहर निकालना और उसको इन्वेस्ट करना किसी भी ऑक्यूपेशन में. क्योंकि आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना आप क्रिएशंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ईश्वर उतना है. गॉड बिकेम्स द वेरी हैप्पी ऑफ दैट. तो ये आपका गॉड्स विल है, अंडरस्टैंड, और वो बिकम्स द हैप्पी. दिस मीन दैट इन्वेस्टमेंट बिकम द समथिंग लाइक ए होली क्रीड. अब ये पवित्र है, होली क्रीड हो गया इन्वेस्टमेंट. इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इन्हांसमेंट करेंगे, वर्ल्ड को ईश्वर उतना ही खुश होगा. दिस इज द एंड एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. आप जानते हैं कि कैपिटलिज्म का हार्ट थ्योरी क्या है, एट द हार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, और विच इज अबाउट द इन्वेस्टिंग कैपिटल टू मेक द मोर गुड्स, अधिक से अधिक गुड्स मैन्युफैक्चर करना, और क्रिएट द मोर प्रॉफिट्स क्रिएट करना. वो क्या करेगा, प्रॉफिट क्रिएट करेगा, विच इन टर्न क्रिएट्स द मोर कैपिटल्स आएगा. तो ये थ्योरी जो हुआ, जो मोटिवेट किया कैल्विनिस्ट थ्योरी से आया, तो उसने क्या किया, एक कैपिटलिज्म के राइज में एक चेन बना दिया. दैट वाज द बैक फैक्टर्स टू पुश द कैपिटलिस्ट व्यूज अहेड. और उसने इन्वेस्टमेंट के लिए कहा, फ्रूगलिटी को आपको उसने कहा त्यागने के लिए. और उसके बाद इन्वेस्टमेंट हुआ, द इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट सेलिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स ह्यूज कैपिटल. This theory came shape and the rise in the यूरोपियन सोसाइटी. और इसी से आज यूरोप क्या है, एक कैपिटलिस्ट कॉन्टिनेंट है,
जहाँ की देखा जाता है, एंड विच क्रिएट्स प्रॉफिट। दस वेबर वॉज एबल टू आर्ग्यू दैट रिलीजन इन दिस केस, कैल्विनिज्म के केस में, डस हैव एन इन्फ्लुएंस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे आप देखते हैं कि रिलीजन का किस तरह से, हाउ द हैड द रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, रिलीजन कैसे मोटिवेट करता है, कैसे पुश करता है कैपिटलिज्म। ये कैल्विनिज्म, कैल्विनिस्ट कैल्विनिज्म को एक्सप्लेन करता है मैक्स वेबर ने, इसी चीज को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से। तो इसलिए रिलीजन कांट बी स्टडीड एज ए सेपरेट एंटिटी। इसलिए हम रिलीजन को केवल एक धर्म मान के उसके रिचुअल्स को, सिंबल्स को, सबको एक स्टडी करके अलग नहीं मान सकते। नाउ इसका क्या है, सोशल फोर्सेस ऑलवेज, हमेशा ये कि इन्फ्लुएंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल फोर्स, और सोशल फोर्स को वो इन्फ्लुएंस करता है रिलीजन। ये दोनों इंटरचेंजेज है। सोसाइटी रिलीजन को इन्फ्लुएंस करता है, रिलीजन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। और पॉलिटिकल डिबेट्स, इकोनॉमिक सिचुएशन, जेंडर नॉर्म्स विल ऑल इन्फ्लुएंस द रिलीजियस बिहेवियर। और सभी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जेंडर जेंडर नॉर्म्स ऑल इन्फ्लुएंस द रिलीजियस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हमारे रिलीजियस जो व्यवहार होते हैं वो पॉलिटिक्स से होता है, वो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर से होता है, जेंडर फैक्टर से होता है, एंड इवन डिटरमिन द सोशल अंडरस्टैंडिंग। और रिलीजन क्या करता है, हमारे सोशल अंडरस्टैंडिंग को भी वो डिटरमिन करता है। वुमेन constitute 50% of the world population in the world. Sociologically, therefore, it becomes the important to ask what relationship this vast segments of the women population has with the religion. ये स्वाभाविक क्वेश्चन है कि भाई वुमेन जो फॉक है पूरी दुनिया का 50% कंस्टिट्यूट करती है, उनका रिलीजन के साथ क्या रिलेशन है, हाउ दे आर द इंटरकनेक्टेड विद द रिलीजन। एंड नाउ this religion is important part of society और inextricably tied to the other part से भी ये जुड़ा हुआ है religion, and task of sociologist is to unravel these various interconnection। और sociologist का क्या काम है, ये इसका जो religion का पॉलिटिक्स के साथ रिलेशन क्या है, इसका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, इसका जेंडर रिलेशंस क्या है, इकोनॉमिक्स के क्या रिलेशंस है, अंडरस्टैंड। ये अपने इकोनॉमिक एक मैंने एग्जांपल दिया कि इसका क्या रिलेशन है इकोनॉमिक के साथ, कैसे कैपिटलिज्म को इसने राइज किया। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट्स है सोसाइटी के, उसके और इंस्टीट्यूशन है उसके साथ रिलीजन, यही एक सोशोलॉजिस्ट का मेन एम्बिशन और मेन मोटिव होता है। आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपका मेन मोटिव यही है कि नाउ और रिलीजियस सिंबल्स हैं। मान लीजिए कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज हम लोग देखते हैं, उसमें क्या है, उसमें डोमिनेट करता है रिलीजियस प्लेज द सेंट्रल रोल ऑफ द सोशल लाइफ में, उनका सेंट्रल रोल था। रिलीजियस सिंबल रिचुअल्स ऑफन इंटीग्रेटेड विद द मटेरियल और आर्टिस्टिक कल्चर ऑफ द सोसाइटी। मटेरियल कल्चर से, आर्टिस्टिक कल्चर से रिलीजन जुड़ा है, उसके रिचुअल्स सिंबल्स सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि एक्सट्रैक्ट है नीचे आपका दिया हुआ बॉक्स में, वहां हम देखते हैं कि दस द नासिक के में रिलीजियस ट्रेंड कैसे चेंज होता है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जिससे मॉडर्निटी है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, जो अल्ट्रा, तो अब रिलीजन के साथ साथ रिलीजियस अटैचमेंट के साथ एक न्यू व्यूज आ रहा है, वो सेकुलरिज्म का व्यूज आ रहा है। आप जानते हैं कि सेकुलर not to be aligned uh, with any religions, understand। और नहीं अलाइंड तो रहते हैं, लेकिन नॉट टू बी द सो मच अलाइंड, सो मच डीपली अलाइंड विथ रिलीजन। तो इससे ऐसे को हम सेकुलर यूज करते हैं, सेकुलर। और भारत आप जानते हैं इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। तो इस रिलीजियस, जैसे नासिक का यहाँ पे एग्जांपल है टेम्पल्स में, कि टेम्पल एक्टिविटीज टाइम के साथ, डेवलपमेंट के साथ चेंज होने लगा। पंडित्स ऑफ द नासिक, व्हाट दे डिड, दे बिगेन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन स्कूल। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या हुआ और एजुकेशनल डेवलपमेंट से, सेंड द स्कूल्स एंड अदर
professions. Here the young youth, जो पिलग्रिम्स है, कभी आते थे कभी, तो जो यूथ क्लास था नासिक का, उसको ये फीड ऑन नहीं कर पाया, वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था। तो क्या किया, दे नाउ टेकन ऑन द डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट ऑक्यूपेशन बाय नाउ लिविंग द रिलीजियस एक्ट, देयर रिलीजियस वे ऑफ लाइफ। अब वो टर्न होने लगे बच्चे, अभी ब्राह्मण और पंडित क्या करने लगे, वो बच्चों को स्कूल भेजने लगे रादर देन द रिलीजियस परफॉर्मेंस। एंड और बॉट, और वहां पे जैसे कॉपर पॉट्स, वहां पे जो वर्कर थे कॉपर पॉट्स के, तो वो बनाते थे, पिलग्रिम्स आते थे, परचेज करके ले जाते थे अपने गिफ्ट्स के लिए या कहीं भी। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने भी देखा कि बाय द टाइम देयर इनकम बिगेन टू डिक्लाइन एंड बिकेम अनसर्टेन, they were bound to have the change this occupation and serve for the yeah, pilgrims who were visiting by visiting there. So this kind of the tendency now emerged when adult males can supported by this occupation. Many craftsmen have entered in the industries and business both small and large scale. Craftsmen भी जो बनाते थे टेम्पल्स के आसपास सराउंडिंग्स इलाके में पिलग्रिम्स के लिए, वो क्या हुए, वो बिजनेस में चले गए, स्मॉल एंड लार्ज स्केल बिजनेस में वो डाइवर्टेड। तो वी कैन सी दैट कि हाउ दिस ट्रेंड्स आर चेंजिंग रिलीजियस, रिलीजन का जो है वो, जो सोशल जो रिलेशंस थे वो बदल रहे हैं, दैट इज द चेंज। तो स्टूडेंट्स टुडे के लिए आज इतना ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर